Immigration. Let's talk about it. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. When Justin Trudeau has accepted that because of past mistakes, these things are happening right now in terms of immigration के regarding अब जो immigration crisis चल रहा है and because of bad actors उन्होंने immigration की जो जितने भी policies थे जितने भी loop holes थे उसको बहुत benefit उठाया उसका बहुत negatively हमें impact पड़ रहा है जो right now और बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द आपको पीआर मिल जाएगा जो कि एक सच्चाई नहीं है इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल सीआरएस बहुत चीज़ें डिपेंड करती है बहुत चीज़ें मैटर करती है ही टॉक अबाउट द टेम्पररी रेजिडेंट ही टॉक अबाउट द परमानेंट रेजिडेंसी ही टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट साइलम सीकर के रिगार्डिंग और बहुत लोग क्या क्या शॉर्टकट्स ले रहे हैं टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे सो आई जस्ट वांट यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट एन आइडिया एट द एंड मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप कनाडा अब आना चाहते हो देन व्हाट यू हैव टू चूज टू मेक योर कैनेडियन पीआर पाथवे सक्सेसफुल Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population's grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. There are two kinds of immigration in Canada. The one you probably think of most is permanent immigration, like when families come to Canada to settle and call it home. Every year, the government determines the right number of permanent residents that we want to admit. That's how it's been done for decades. But a plan that only talks about permanent immigration misses the other pathway, temporary immigration. Temporary residents are people who come to Canada for a limited time, like international students, temporary workers, and so on. They come to work a job or go to school. When the job is done or when they finish their degree, most return home. Some apply to stay as permanent residents, but most return home. So back to this year's plan. Historically, Canada's annual immigration plan just looked at permanent residents. The number of temporary students and workers that we admitted each year was left to the demands of the economy. It was usually a small proportion of our population, so it's never been a part of the long-term immigration plan. But after the pandemic, our economy came roaring back quickly, and we needed a lot of workers fast. Canada is in the middle of a huge labor shortage. Temporary foreign workers became such a significant part of our workforce that it'd be a mistake not to include them when we plan our immigration levels. So this year, we did exactly that for the first time. We laid out a plan that sets targets for both permanent and temporary residents. This way, we're getting the full breakdown of people coming into our country so we can prepare the homes and infrastructure needed to support them. देखा ये सच्चाई है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए 2024 के अंदर इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन को रोकने के लिए काफी पॉलिसीज लाई है इवन जस्टिन ट्रूडो ने भी एक्सेप्ट किया है कि दे हैव डन द मिस्टेक इन द पास्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक्स दिस थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ देखो कैनेडियन गवर्नमेंट का फोकस एक ही है कि टेम्पररी रेजिडेंट जो भी इनसाइड कैनेडा है जो भी टेम्पररी रेजिडेंट्स है चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो चाहे वर्क परमिट पे हो उनको कम करना है या तो उनको पीआर देना है या तो उनका अगर वर्क परमिट खत्म हो जाता है तो उनकी स्टडी खत्म हो जाती है दे हैव टू गो बैक टू देयर होम कंट्री देखो अभी जो सीआर स्कोर बन रहा है वो काफी हाई जा रहा है जो पीएनपी का स्कोर बन रहा है काफी हाई जा रहा है इट्स नॉट इजी टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर इट्स नॉट इजी टू एवरीवन फॉर एवरीवन कि आपको नाम से पीआर मिल जाएगा बहुत सारी पॉलिसीज को बंद किया गया स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पीएनपी के रिगार्डिंग कहूं मैं और अभी से फोकस किया जा रहा है जो फ्रैंकोफोन कैटेगरी हेल्थ केयर कैटेगरी स्किल बेस्ड कैटेगरी ट्रेड कैटेगरी है इन पे ही फोकस किया जा रहा है एंड दिस इज द वर्ड्स ऑफ जस्टिन ट्रूडो नॉट माइंड एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी सिर्फ देखो कनाडा इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कनाडा को इमिग्रेंट्स की पहले भी रिक्वायरमेंट थी आज भी रिक्वायरमेंट है बाद में भी रिक्वायरमेंट होगी बट आई ऑलवेज टोल्ड यू वन थिंग रिमेंबर वन थिंग चूज योर कोर्स वाइजली चूज योर पाथवे वाइजली अगर आपको वर्क परमिट पे आना एलएमआई पे आना एलएमआई पे आओ स्टडी वीजा पे आना स्टडी वीजा पे आओ बट मेक श्योर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो आपका पास का एक्सपीरियंस अच्छा हो आपके अच्छे पॉइंट्स बन रहे एंड ये भी डिपेंड करता है अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टडी वीजा पे जाते हो तो अगर आप अपनी ग्रेजुएशन करिए तो चूज द मास्टर कोर्स जिसमें आपके चांस ऑफ गेटिंग इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे वुड बी मच एंड मच हायर एज कम्पेयर टू अगर कोई और स्ट्रीम को ऑप्ट करते हो कोई और कोर्स को ऑप्ट करते हो देखो आज के टाइम पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट को ऑप्ट करना इट्स जस्ट मेरे को कोई बेवकूफ़ी वाली बात है इट्स बेटर कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो मास्टर्स में जाओ
और ग्रेजुएशन के बाद एटलीस्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस लो, या तो आप ट्रेड कोर्स में जाओ या तो हेल्थ केयर कोर्स में जाओ, ऐसे कोर्स में जाओ जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे। आप लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू इनटू द फ्रैंकोफोन कैटेगरी। देखो सिंपल सा आपको मैं एक फंडा बताता हूँ। कनाडा गवर्नमेंट का फोकस है 2025 से लेकर 2027 तक 5 लाख उड़ने का था पीआर देके एवरी ईयर, बट अभी 3,50,000 है, 3,40,000 है, 3,10,000 है, 3,05,000 है। सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन, पीआर मिलना इट्स नॉट फॉर एवरीवन। रिफ्यूजी के अंदर भी बहुत सारे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। कई जगह रॉक्सम बॉर्डर जो क्यूबेक प्रोविंस के था उसको भी बंद किया था, लेकिन स्टिल अभी भी एप्लीकेंट्स अगर आप फाइल लगाना चाहते हो यू कैन फाइल, यू कैन अप्लाई फॉर द असाइलम। एंड बहुत अभी देखो मेन मुद्दा जो है ना, मेन चीज़ है कनाडा में राइट नाउ, वो है इलेक्शन। 2025 में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में इलेक्शन है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये सारी चीज़ें हो रही है, इस सारी पॉलिसीज को चेंज किया जा रहा है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, चाहे वो टेम्परेरी ही लगाया जाओ चाहे उसको लगाया ही जा रहा है, बहुत सारे पीएनबी को बंद किया जा रहा है। देखो मेरे हिसाब से अगर आप आते भी हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना स्टडी वीज़ा को, दूसरी प्रायोरिटी देना एलएमआई को, लेकिन सबसे उससे भी पहले एक प्रायोरिटी देना डायरेक्ट पीआर को। लेकिन सारे डायरेक्ट पीआर के पाथवे अभी क्लोज्ड है, टेम्परेरी ही क्लोज्ड है, चाहे वो अल्बर्टा टेक हो, बीसी टेक्नो पाथवे हो, एआईपी हो, चाहे वो एआईएनपी के अंदर हो, चाहे वो डबल आर स्ट्रीम हो, लेकिन ये सारे क्लोज्ड है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गेट इनटू द कनाडा राइट नाउ। इवन विजिटर वीजा के अंदर भी मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री का हो गया। जरूरी नहीं है आपको मल्टीपल एंट्री मिले, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ योर विजिट और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास जॉब है या नहीं है, इनफ फंड्स है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू, देखो किसी कंसल्टेंट लॉयर को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, रिसर्च करो फ्रॉम योर साइड, रिसर्च करो अपनी प्रोफाइल के ऊपर, इंप्रूव योर प्रोफाइल एंड सी कि आप अगर आप इस कैटेगरी में जाते हो, इस पाथवे को चूज करते हो, तो आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे, क्या उसके ड्रॉ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि भी जितने भी मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉस हो रहे हैं वो सारे सी से ड्रॉ हो रहे हैं। दैट मीन्स कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है देन इट वुड बी हायर चांसेस कि आपको आराम से पीआर भी मिलेगा। इवन 40% कोटा कर दिया था आईआरसीसी ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने, जो इनसाइड कैनेडा जो टेम्परेरी रेजिडेंट पे हम उन्हीं को ही पीआर देंगे। अगर आप बाहर से फाइल लगाते हो एक्सपेंट्री के अंदर, पीएनपी के अंदर, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर अनटिल अनलेस अगर आप हेल्थ केयर के अंदर हो, आप ट्रेड के अंदर हो, या आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर हो, इसी में ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप सोचो मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ या मैं आईटी सेक्टर में हूँ और मैं बाहर से फाइल लगाता हूँ, मेरा 520 525 स्कोर भी बन रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ड्रॉ सीसी वाले ही हो रहे हैं, बाहर के ड्रॉप बहुत कम हो रहे हैं, और जो भी हो रहे हैं वो फ्रैंकोफोन कैटेगरी है, हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर हो रहे हैं। तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द कैनेडियन पीआर पाथवे इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ। मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा, दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप जाना ही चाहते हो, go into the LMI, go into the study permit, and if you need any help regarding anything, let me know in the comment section, or you can DM me on Instagram, DM me on WhatsApp. I will definitely help you out. तब तक के लिए goodbye.